Um, a couple of things that we can discuss first is that the efficiency factor. When you say that an engine is burning fuel, right? So an ICE engine, internal combustion engine, that's all these engines are, right? It is primarily sourced from a steam engine, right? And steam engines used to be huge because they were on the railway and all those things. So they were efficient at that time. The efficiency factor is removed from the steam engine when it goes to an internal combustion engine because you have to make it lightweight. So when you make something lightweight, the flywheel, the first thing that is dependent on diesel engines is the flywheel. वो जो combustion करता है ना, वो compress करता है ताकि वो explode हो diesel, right? It is made lightweight because the car has to be lightweight, right? The inertia and all those things have to be calculated. There is a competitor who is creating a car which is more faster to make it more faster, more lightweight. So inefficient engines होते हैं. How inefficient? 20% of the energy that is combusted in joules is used in the car to move it. Every car that is moving is 80% inefficient. Every car, be it the best car, be it the high-end car, be it the what, just 20% efficient, and all IAC engines are, right? First thing. Second thing, there are some heavy elements, there are some pollutants, there are some things that are in hydrocarbons, in fossil fuels, that are not there in organic seed oils. So one thing is that even if you use the oils, like I had seen a documentary in Congo where they used coconut oil in place of diesel, just transferred it to coconut oil, and the car can run in diesel car can run. There's nothing to do, no changes are to be done, right? So that is how easy it is actually to convert, right? They had made some very minute modifications. Maybe the filter is a little bit more open because the oil is thick, so small things like that. But coconut oil mein diesel gaadi chalegi. And obviously when we think about it, something which is in the under the ground, right? You are purifying it. First of all, the energy wastage is there taking place in refineries, right? They are heating it up at some particular temperature. You're getting the kerosene, the jet fuel, the diesel, the petrols, depending on their density. So the higher you see this on a zoom out perspective, you will get to realize that first, all engines, ICE engines, internal combustion engines, are inefficient to 80%. Matlab they are just 20% efficient. Second thing, the pollutants in fossil fuels are many, like sulfur and nitrous. Yeah, carbon ठीक है, वो तो उसमें भी निकलेगा. But sulfur and heavy metals are there in the fossil fuels. So those are being given out in the air. Had there been a plant which was taking it out from the natural atmosphere, then it's okay, it's not a pollutant. We have to understand what is pollution. Third thing is that we are using a chemical reaction when we burn fuels by oxidizing it, right? You're giving it oxygen, then it burns, and then it gives the heat, right? Any fuel. I am talking about horses and ox carts were actually biological breakdown of fuels. They eat the grass, they consume it, and the oxidation happens organically inside the stomach, right? And so that is the best and the most efficient way of using the fuel. The fuel being the grass, right? अभी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग. घास को जला देते हैं, घास को सड़ाते नहीं हैं. आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज आई एम अ फार्मर. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैंने बहुत सिखाया है. द पीपल फाइंड वेरी शॉर्ट ईजी वे आउट्स. बहुत सारी घास हुई है वीट के हार्वेस्ट के बाद, उसको परार कहते हैं हम गुजराती में, उसको जला दो, सब हवा में हो गया, ऐश हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो तो अच्छा ही है ना. But if we had given time to it, if we had given time to make it a compost, if we had done a biological breakdown of the same matter, that is carbon, right, in solid form. Imagine the air that is carbon dioxide and brought down to solid form. Obviously it is occupying less volume, right? So that's a good thing. And it is brought to solid form, so there is less of carbon dioxide in the air, which is also greenhouse gas and all those things. But the point is, biological breakdown happens when we used to use horses and ox carts and all those kind of things. So now when we talk about any fuel, we are talking about chemical reactions, and chemical reactions are inefficient because they are physical in nature, right? And biological reactions or breakdowns are more efficient. Photosynthesis is more efficient,
than any solar panel. Solar panels are maybe, I think they've gotten to something like 10% maybe. Any solar panel, 10% efficient. The rest of it is just absorbing the heat and actually making it inefficient as it is attracting the heat. वहाँ 20% तक किसी ने claim किया है, but it's not feasible economically. They cannot make 20% efficient solar panels also. So imagine the sun is hitting and only 8% is converted to electricity. So your question was there also that solar panels, is it efficient than these grids? Yes, because the grids is pushing so much electricity and those transmission losses are happening, right? So definitely solar panels on the top of your terrace, so that's efficient that way. But my question is, how many solar panels? हम लोग बहुत ऐशो आराम में जिएंगे, हर एक रूम में AC लगा देंगे तो n number of solar panels you will need also. But if we are efficient, if we understand plants, if we understand vines and climbers, I will show you a video if you get time. My house is covered with a vine, right? Climbers होता है ना, creepers and climbers. So that basically reduces the house temperature by 3 to 4 degrees. It is technically because there are row houses. I am going to this guy's house, which is my neighbor. It is more hot than my house because of a simple climber which is climbed on top of our roof. So why don't we use biological solutions, right? Nobody wants to take up biology as a subject these days. Everybody wants to do business. Everybody wants to earn money, become somebody who can earn I say the other green stuff. Right. You know, instead of the greenery of the world, they prefer the green money. Right. And it's not that they are not interested. A lot of students say they are interested in the subject, but they just don't want to take it up. Right. So it is about being sensitive ultimately. If we are so passionate to see our heroes running around in cars and helicopters and dropping from the skies and going in fast gas guzzling cars, this will never end. It's a cycle. Those are telling the stories, and now the stories are keeping on piling up in the new generation, and they are saying that okay, we have to have a good car, fast car, efficient car. Electric cars, by the way, are 80% efficient. 80%. Yet the only problem is when you mine the lithium or when you are processing the lithium, that creates like 10 years worth of carbon dioxide in one go. Before you even buy the car, you have polluted the environment 10 years driving a normal fossil fuel car. So we have to think very logically. Do we need a car? Yes. For what? Why? Nobody's answering that question. We need a car. We need a car. That's it. We're just concentrating on the what. What do we need? We need a car. Why? Nobody's answering that question. We have public transport, right? That is the most efficient way to travel. Yet I'm seeing people are just driving in Harley Davidsons and all these kind of motorcycles because there is an ego linked with that I am driving a motorbike. I have to have some worth. My worth is through this bike. Otherwise I'm worthless. This is the problem. So it is very, very psychologically linked. This darshan is actually opens you up to that forte, that what are we actually taking into consideration based on value of ourselves, right? We see this in the market that people who have the high-end things are actually more respected, but are they really? Or are we envious of them? When we see a rich person, don't we feel that he must have exploited some people or he must have done something wrong? How can he earn so much money? We are always envious when we see a rich person, yet we all want to be rich. So somewhere down the line we have to understand that ज्ञान जो है वो ही सबसे बड़ा asset है, right? And that point of view, if you look from that point of view, then now you will be having a good insight into making a solution. Otherwise you will create a solution which is basically just market driven, and then the market for that will also run out one day. If you are going with the market and you have very sharp and a step ahead, then you will become like Amazon at least, and then you will have the millions and everything. But at the end of the day, he is also responsible for creating a lot of pollution. His packaging material is creating a lot of pollution. He has been sued by so many people by falsely pushing out his products which are outdated to some remote places. Have you heard of that? Where there is a particular item, like for example, this is outdated, right? But he has brought the stock for like 5-6 years. He has a lot of stock of this. He had stocked it at that time.
So now it was valuable at that time. Now it is having no value. So it is just lying somewhere. So they ship this to a remote place somewhere very far away to get rid of it so that he has warehouse space. There are cases like that. Now those guys are suing him. But they cannot sue because they are so living so far. Suddenly आपके घर के आगे बहुत सारी pans आ गई कूड़ा की तरह. Because they are dry or they are not working or they are outdated. Imagine. ऐसे लोग भी हैं अमेरिका में कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ लाइक दैट. एम्प्लॉय हैरेसमेंट दे आर ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ दैट, दिस मल्टीनेशनल कंपनीज. सो आर वी डूइंग द राइट थिंग बाय इवन गोइंग टुवर्ड्स दिस चैनल ऑफ अर्निंग मनी सो viciously that definitely the planet is suffering first thing, but at the end of the day also the human being is suffering. So पूरा सोचना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए हमको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वाई डू वी नीड द ट्रांसपोर्ट. हमको पूरा का पूरा फिर से समझना पड़ेगा. If the system is designed as such that where our workplace is the same place where we are having the household, where we are living spaces is our workspace, and indeed in the digital era that is the case, right? तो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉसल फ्यूल जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. We could have a place where we are farming, we could walk there, we are having a place we are educating, we could walk there, we are having a place of recreation, eating, socializing. It can be in the walkable distance, right? So that is what we need to look at, the whole zoom out version. If we keep on looking at what is the alternative for fossil fuel, there is an alternative. Coconut oil is there. Then you will plant coconut trees everywhere. Then you will have again those coconut oil to be coming to one place, then making that, converting that, and then again it creates another headache, cascade of what do we need to do to process the things and all those things. Now where to put the waste of the coconut, that shell, all these things will come up starting. So ये सब सोचना पड़ेगा, है ना. चलो. आई होप थोड़ा सा ध्यान दिलाया है. भी हमने सॉल्व तो नहीं किया. मैं बाकी लोगों के लिए इस बात को थोड़ा सा आसान भाषा में रख देती हूँ, है ना. जलज इतना टेक्निकली समझ सकते थे इसलिए काफ़ी टेक्निकली सर ने ध्यान तो दिलाया है. 2-3 बातों पर ध्यान दिला देती हूँ बस. जैसे सर ने एक ध्यान दिलाया, हमें पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि अभी हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. आपको इतनी दूर से इस स्कूल के लिए क्यों आना है. इस स्कूल में बहुत दूर दूर से बच्चे आते होंगे. जो इसी जगह रहने वाले बच्चे वो हो सकता है यहाँ से कहीं दूर जा रहे हो. तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि हमको ट्रैवल ना करना पड़े. ठीक, एक बस इतना ही बोल रही हूँ, इसको आप सोचिएगा और उत्तर इधर है आपके पास. दूसरी बात, कोकोनट के ही मान लो ट्रीज़ लगा दिए, कैस्टर के ही ट्रीज़ लगा दिए, सेसमे लगा दिया, ये सारी चीज़ें यही सब लगा दो मान लो. बट नेचर का डिज़ाइन ऐसा नहीं है. नेचर फार्मिंग नहीं करती है. नेचर में जंगल्स हैं. नेचर हैज़ अ डिज़ाइन ऑफ गार्डन्स. उसको समझेंगे जनक सर के साथ. जनक सर को स्पेशली अलग से आपको सुनना पड़ेगा. आप जितना डिटेल पूछोगे उधर उतना मिलेगा आपको. ठीक है. एक और मुझे ध्यान दिलानी थी कोई बात. हाँ, यस. तीसरी बात ये कि भाई मैं ये आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ. आप जो छोटी सी बात पूछी ऐसा क्यों है, तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है ना बॉडी का, देखो जो डार्विन है ना जिसने स्टडी किया, उसने किसका एवोल्यूशन पढ़ा है, उसको लॉजिकल कंक्लूजन देखा है ना किसका, ह्यूमन बॉडी का. ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन उसने नहीं देखा है, ह्यूमन बॉडी का तो देखा है. ठीक है. और उस क्रम में आपने एक शब्द सुना होगा, एक नाम, ये डायनासोर सुना, डायनासोर्स का नाम. इसके फॉसिल्स मिले और उसमें से सब उसने बेसिकली हड्डियों का ही अध्ययन हुआ है और कैसे इवॉल्व हुआ है ऐसा एक इसने लॉजिकल वो रखा है. ठीक है. और ये भी पता है डायनासोर के टाइम पे ही क्या हुआ, कुछ उथल पुथल हुई और जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत लंबे लंबे, कितने 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जो लंबे पेड़ थे, वो जो है ना वो धरती के अंदर दब गए, है ना. और दबने के बाद जो सीड्स थे ना, सीड्स उन्हीं पेड़ों के, वो जब प्रेस हो गए तो उससे बना ऑयल, क्योंकि सीड्स में होता है ऑयल, मिनरल ऑयल. और वो जो तना था ना, उसका स्टेम था, स्टेम क्या हो गया, दब गया, तो कंप्रेस हो गया, तो
पिचकने के बाद तेल अलग और उसके बाद कोयला बन गया वो। इतनी सी कहानी है, ठीक है। और उस टाइम के जो जीव जानवर थे वो सब बहुत बड़े बड़े जानवर थे। और ये जो पेड़ थे ना, इतने लंबे लंबे पेड़ जो थे, उनका एक पर्पस था। उनका पर्पस ये था कि उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड को ये पचाया करते थे। दे यूज्ड टू कंज्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी के जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने के लिए बने, प्रोसेस करने के लिए बने। ये साइंस से अछूता है हिस्सा, लेकिन आप इसके लिंक्स जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, इसीलिए जब हम ज़मीन के गर्भ से जो कोयला निकालते हैं और उसको जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें रिलीज़ होता है। लेकिन जब हम अपनी लकड़ी जलाते हैं या कोई भी और चीज़ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब शी जस्ट यूरेका मोमेंट। उधर कीजिए जरा कैमरा। अब क्लिक हुआ, अब तक नहीं हो रहा था। That is why it is a pollutant. दैट इज वाई इट इज अ पोल्यूटेंट। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को कोई पचाएगा नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड को सो एवोल्यूशन जो है ना, उसको समझा ही नहीं अभी। डार्विन स्टडी करके कुछ उसने लिंक छोड़े हैं, अभी आगे कुछ स्टडी नहीं हुआ है। मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद की रोशनी में इसका अध्ययन करिए, देखिए। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब वो तो किसी प्रयोजन के साथ यहाँ पे गया। अभी मैंने आगे आज ये टॉपिक कवर करना था, वो हो नहीं रहा है क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने हैं। सुनिए इसको। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तभी निकलता है, अब हम उसको ज़मीन से खोद लाए और यहाँ जला दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गई। लेकिन इस धरती के ऊपर कोई पौधा ऐसा नहीं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोसेस कर ले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और इनसे बना के C6H12O6 और ये सब जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जिसको हम आगे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो जब ये विघटित होता है, मतलब ये जब टूटता, ब्रेक होता है ना रिएक्शंस में, तब फिर से ये यही रिलीज कर देता है, जिसको फिर से पेड़ पचा लेता है, तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है। So carbon monoxide is becoming a greenhouse gas because there is a lot of being released. सुनने के लिए आपको हमारे अगले सत्रों को सुनना होगा। अब मैं इसको यहाँ रोकूं। डज दैट गिव योर आंसर? अच्छे से ध्यान में गए। और इसको जितना आपको देखिए, वो तो अभी जिसको हम बोल रहे हैं ना सोलर पैनल्स और ये, वो अभी सर ने क्या बताया, 1 मिनट दे रहा है, इसको पूरा करने दीजिए। जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो कितने एफिशिएंट है? मैक्सिमम 10%। जो अभी ये इंजन्स हैं कितने एफिशिएंट है? 20%। ठीक है। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था धरती में सारे एलिमेंट्स किस लिए हैं, अभी आपको भी बताऊंगी। जो पत्ती होती है ना, पत्ती किसी प्लांट की, 100% एफिशिएंट सोलर पैनल ही तो है। वो प्रोसेस जो हो रही है, इट कन्वर्ट्स अ हीट इनटू ग्लूकोज। और क्या है? ATPs, हाँ, all ATPs, हाँ। पर इसको हमने यूज कहाँ किया है भावा? अभी तक कोई भी बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया आपने? मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? यू हैव ओनली यूटिलाइज मटीरियल ऑर्डर। नेचर इतना इवॉल्व है कि ये जो हम बने हैं ना, हम सेल्स से बने हैं, और हम जो रोबोट बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मैटर से। और हम नेचर को कह रहे हैं कॉपी कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कॉपी कर रहे हैं। बनाओ, एक सेल बना के दिखाओ, हो जाएगी। समझ रहे हैं? कहाँ कैसे पहुंच जाओगे? नेचर में उसका डिजाइन नहीं है भाई। नेचर में 100% एफिशिएंसी का डिजाइन पत्ती से है। Nobody can make up RBCs. Nobody can make RBCs. एंड नेचर में ऑटोमेटिक है। Never. वो समझ नहीं रहे हैं। वो मोनो से डायो, डायो में से ट्रायो कर रहा है। समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। अभी भाई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत पूछना, मैं पढ़ा तो कुछ तो बता दूं आपको। सिर्फ आखिरी एक बोलो जल्दी, छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा आंसर दूंगी। आगे टेक्निकल चीज़ों के लिए अगले सत्र प्लीज़। मैम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस कम कैसे करें? ठीक है, अरे कार्बन को भैया मैम वैसे नहीं, क्योंकि अगर हम कम करने जाएं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की, भाई खत्म करो ना। बहुत सारे लोगों की जॉब्स ऐसी फैक्ट्रीज में, उन लोग को कहाँ भेजे? बस बता रहे बेटा,
जॉब अस्तित्व में, सब ये सब भ्रम। मैं भी बताती हूँ क्या करते हैं सॉल्यूशन। आप जो प्रश्न पूछेंगे, हम, आपको क्या लगता है इस दुनिया में हर एक इंसान का यही सब प्रश्न है भाई? उसका इधर उत्तर है, बताते हैं आपको, ठीक है। जॉब जानते हैं क्या है बेटा? सर्वाइवल। जॉब जाने का भय, ये सब क्या है? सर्वाइव, फियर है ये सब अभी, लेकिन बात करते हैं। लेकिन आदमी तो यहाँ जीना चाहता है ना, इसका डिज़ाइन कैसा होगा। ठीक, अब मैं अपनी बात रखूँ। हम लोग आज का सत्र अभी शुरू नहीं कर पाए, आपको पता है, ठीक है। अब मैंने जितना सोचा था वो लेकिन ठीक है, चलो आप सुनिए। इसका जो परिचय शिविर है, कम से कम आपको 7 दिन सुनना है, और सुबह 9 बजे शुरू होता है, शाम को 6 बजे ख़त्म होता है, ठीक कहा मैंने? हाँ, उसके बाद गोष्ठी, ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चंस, वो सब भी होता है। उस ड्यूरेशन के आफ्टर 6 बजे के बाद गोष्ठी होती है ना? नहीं, वो डिस्कशन नहीं, जीवन विद्या का कंटेंट नहीं, इन बिटवीन जो कंटेंट है, हाँ, किसी को क्वेश्चन है, लाइक, हाँ, यस यस यस, वो श्रवण भैया उसका भी आंसर कर देंगे, क्या व्हाई दिस डिफरेंसेस आर। आप ये सोचो, आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसका उत्तर ना हो यहाँ पर। जो जिसको हमने धरती को रहस्य माना है ना, या जिसको हम ब्लैक वॉल बोलते हैं साइंस में, सबसे मुक्ति है इधर, रहस्य मुक्ति का कार्यक्रम है ये। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अभय की, जो मैंने कल बात कही थी। ये समझ गए ना, तो आदमी जो है अभय से नियंत्रित है, और ये उसका डिज़ाइन कहाँ से आ रहा है? उसके चेतना में। शरीर में तो डिज़ाइन जो है वो जैसे ही कुछ भय का होता है, शरीर दौड़ने वाला डिज़ाइन है, तो शरीर की अब बात हम नहीं करेंगे इसके आगे एनीमोर, ठीक है। 3 अवस्थाएं और शरीर की बात अब नहीं करेंगे, उसकी बातें अगले सत्रों में। हमारा बात जो है वो चैतन्य पक्ष के ऊपर हम धीरे से अब जाते हैं। तो ये जो चैतन्य पक्ष है मानव का, ये मानव असली में वही चीज़ है, मानव में वही प्रधान चीज़ है, क्योंकि चैतन्य जो है ना, वही तो व्यक्त हो रहा है शरीर के माध्यम से, ठीक है। तो मानव का चैतन्य पक्ष क्या हो रहा है? शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। चैतन्य पक्ष का डिज़ाइन क्या है? ज्ञान से नियंत्रित होने का, भय से नियंत्रित होने का डिज़ाइन नहीं है इसमें, ठीक। तो अब ये जो चैतन्य पक्ष है, इसको ज्ञान से नियंत्रित होना है। तो अस्तित्व में ना, जैसे हर एक वस्तु क्या है? समाधान स्वरूप, वैसे ही अस्तित्व में एक डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन बिल्कुल ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। जो मैंने कल आखिरी में बात कही थी, आप जॉब नहीं चाहते हो, आप सर्वाइवल नहीं चाहते हो, आप जानते हो क्या चाहते हो? आप और इस दुनिया का हर एक इंसान मज़े से रहना चाहता है बस, और आप कुछ नहीं चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कुछ करना नहीं चाहते हो, मज़े से तो और भी ज़्यादा किया जाता है। जब हम आराम में होते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं मानव में 5 जो है व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। देखो, शिक्षा संस्कार मैंने कहा था पहला, सही समझ, और सही समझ से अगले को सही समझाना, ये शिक्षा संस्कार, जिसको हम स्कूल बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो हर बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु होता है ना। हर बच्चा जिज्ञासु होता है, और उसकी जिज्ञासु को, जैसे आप कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बता रहे हो, उत्तर मिल रहा है, तृप्त हो रहे हो, तृप्त होने के बाद अगले को बता रहे हो, ये सब डिज़ाइन चल ही रहा है। उससे क्या होता है? हर बच्चे में या हर मानव संतान में एक मानसिकता खड़ी होती है। वो मानसिकता क्या है? न्याय और सुरक्षा की। न्याय का मतलब है अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, इसको मैंने शब्द में लिखा है अखंड समाज, ठीक है। और सुरक्षा का मतलब है धरती पे जो 4 अवस्थाएं हैं ना, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, ये सब संतुलन में रहें। इसको हम बोल रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था ये कहाँ आ गई? आपके मानसिकता में। ये आपकी मेंटालिटी क्रिएट हुई, ठीक। ये आपको क्लैरिटी हुई, क्लैरिटी से ये मेंटालिटी आ गई आपकी। अब ये जो मेंटालिटी है, इससे क्या होता है? बढ़िया से जीना बनता है। कहाँ जीते हो? जो परिवार में जो संबंध है उनमें साथ बढ़िया जीते हो आप, ठीक। किसी का शोषण नहीं करना है। तो इस तरीके से अब अपने पास एक चाहिए अपने को व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? तो वो भी मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसे होगा। लेकिन छोटी सी बात, देखो बेटा, आप खाते हो गेहूँ या रोटी, सब्जी, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, देखो यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं, पैसे से कुछ नहीं आया है। ये सारी वस्तुओं का रॉ मटेरियल कहाँ था? इसी धरती पर।
इस धरती पर आदमी ने अपने हाथ पैर चला के, अपनी बुद्धि चला के कुछ इससे बना लिया है। इसमें पैसा तो कहीं नहीं था ना देवराज, पैसा था क्या कहीं? पैसा इज़ ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग। आपको ये बॉटल चाहिए, ये इसकी दुकान है, इसने कहा ये मैंने बॉटल बना के रखी है, तो मैं कहती हूँ ठीक है गूगल पे कर देते हैं, टिंग 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 पहुँच गया उधर, है ना। एक नंबर इधर था, वो नंबर इसके पास चला गया कुछ, आप वो वस्तु को ले लेते हो, ठीक है, और वो वस्तु को आपने कंज्यूम किया, जो करना है वो किया। पैसा रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो ये वस्तु है। बात पकड़ में आई? तो आदमी को मज़े से रहने के लिए क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए। हमको कपड़ा चाहिए ना कि पैसा चाहिए? बोलो, कपड़ा चाहिए। कपड़ा बनाने के लिए शायद चरखा चाहिए, कपास का बीज चाहिए, कपास चाहिए, कॉटन चाहिए, यही सब तो चाहिए ना। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए, जिसका प्रोडक्शन करने का स्किल किस में होता है? बंदर में होता है क्या? ह्यूमन बींग्स में होता है। और अगर ये ह्यूमन बींग्स की समझ में है, ये स्किल है उनके पास, और स्किल के साथ क्या है? मेंटालिटी है। किसकी? अखंड समाज की। अखंड समाज मतलब सभी मेरे अपने हैं। इस मेंटालिटी के साथ हम लोग मिल करके क्या कर सकते हैं? उत्पादन। तो ऐसा ये जो 4 अवस्थाएं हैं, उनको संतुलित रखते हुए, उनको और ज़्यादा नर्चर करते हुए क्या प्रोडक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कि नहीं किया जा सकता? हाँ, अभी आ रहा है वो, उसके बाद ही, ये आज कल का वो मैं ले रही हूँ। तो हम ये उत्पादन कार्य करें, ठीक। ये कैसे होगा अभी सब बता रही हूँ, उसको और डिटेल में जब जाएगा, ठीक है। उत्पादन के बाद अब चूंकि हमारी मानसिकता में क्या है, जो भी वस्तुएं हैं, हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? मानसिकता यहाँ बदल गई है ना, तो मानसिकता बदलने के कारण हम क्या करते हैं? हम देना चाहते हैं। जैसे माँ आपके साथ संबंध को पहचानती है, आपके पिताजी कितना भी कमा के लाते हैं, अल्टीमेटली सारा पैसा आपके ऊपर लगाते हैं। आप देखोगे ना, बच्चे सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कुछ नहीं देना है इनको, आप सारी ज़िंदगी खपते हो और उसके बाद इनके ऊपर लगा देते हो। नॉट लाइक दैट, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आज के इकोनॉमी के हिसाब से। आप सारा दिन बाहर खटो और उसके बाद आके जो भी कुछ है वो बच्चों के नाम, और बच्चे कई बार सुन भी नहीं रहे हैं, फिर भी उसको मना भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और हम बच्चों के लिए करते हैं। आदमी में एक डिज़ाइन है अगली पीढ़ी को नर्चर करने का, या जिसके साथ अपने संबंध को पहचानता है उसको नर्चर करने का। ये हमारा डिज़ाइन है। हमारा फ्लॉ ये है कि हमको ये आया ही नहीं है, न्याय हमारी मानसिकता में नहीं आया है। और वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं बैठा है, शिक्षा से संस्कार तक की यात्रा नहीं हुई है, हमारे अंदर संस्कार नहीं आए हैं। अभी संस्कार किसी और चीज़ को बोल रहे हैं, हम यहाँ पर संस्कार को बोल रहे हैं, रियल यथार्थ ज्ञान जो है उसको हम कह रहे हैं। और यथार्थ का मतलब जो वस्तु जैसा है उसको ठीक समझना। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी कर रहे हैं। अब जॉब क्रिएट कर रहे हैं, बीच का प्रॉफिट, कोई एजेंट बन गया, कोई कुछ, उसमें ज़्यादा भाग अपना रखा। इसमें इस समय सबसे कम पैसा कमाने वाले वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिसको हम लेबर क्लास बोलते हैं। सबसे ज़्यादा काम वही करते हैं ना। समझ रहे हैं? जो डिस्पैरिटी है कहाँ से आ रही है? यह आ रही है हमारी मानसिकता से। हमारी मानसिकता में सही वस्तु नहीं गई, ठीक है। तो हमने सही से उत्पादन कर लिया, उसके बाद विनिमय कोश, ठीक है। विनिमय मतलब एक्सचेंज किया, एक्सचेंज किया मतलब दिया। जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया, अगले जिसको हमारी आवश्यकता के बाद जो बचा उसको दे दिया, और उसके बाद जो बच गया उसको कोश बनाया, ठीक है। इस तरीके से आगे क्या है? सबका पेट भरा हुआ है, सबकी मानसिकता बढ़िया, इसको कह रहे हैं स्वास्थ्य संयम। स्वास्थ्य संयम, स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ सबकी इंश्योर होगी, संयम मतलब मेंटल हेल्थ सबकी इंश्योर होगी, क्योंकि संबंधों में समस्या है ही नहीं। हम देकर तृप्त होते हैं, देवता होने का हमारा डिज़ाइन है। हमारे घर में एक ड्रम स्टिक का प्लांट है। हम अपने घर से आए ना, हम आते, हमारे घर में कोई आता, हम सबको वो ड्रम स्टिक्स खिलाते हैं। और अब मुझे ड्रम स्टिक खाने का मन ही नहीं करता है, खा खा के तृप्त हो गए हैं। खा के मतलब कितना तुम खाओगे भाई? आदमी का डिज़ाइन है, जब उसके पास कोई अपना स्वत्व होता है वो उसको बांटता ही है। पैसे का संग्रह हो सकता है, ड्रम स्टिक्स का नहीं हो सकता।
और पैसा एक रियलिटी है ही नहीं। जब आप अनरियल वर्ल्ड में जीते हो ना, तो आपके पास सारे प्रकार की कुंठा, निराशा, ये वो सब एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार है। जब रियलिटी में जीते हो उसका कुछ है ही नहीं अस्तित्व। इसको हम करेंगे अभी, है ना। आप ये सोचो मेरे इतना बोलने से आपको, आई नो अभी आपको ये पहुँचेगा नहीं, हमें भी बहुत समय लगा सुन करके। बोलो मैम, पर जैसे अभी तो ये जो पूरा साइकिल है ये पूरा बिगड़ चुका है, क्योंकि बिगड़ कहाँ चुका है बेटा, अभी आया ही कहाँ है इसको। ये कभी था क्या? नहीं था, कभी नहीं because था, इसलिए हमको लेके आना है इसको। आपने बोला वहाँ पे संयम जो है, मेंटल हेल्थ, वो हाँ। वही अगर लोगों का हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर वो शिक्षा एंड संस्कार वो आगे आएगा नहीं। फिर एक कहीं से साइकिल शुरू होगा ना, ए नागराज जी से शुरू हुआ, तो अभी हमारे में कुछ लोगों में आ गया। पर अभी तो मनी को इतना वैल्यू कर रहे लोग, ये कैसे कहाँ ये वैल्यू कर रहे हैं बेटा, मनी वनी मैम, जितने, money के बिना अरे आप देख लीजिए हाउ मेनी मिलियनर्स टेक देयर लाइफ, अपना सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ पैसे का वैल्यू है भाई? मैम मतलब जैसे आप आपने सुनिए ना बोला मेरी बात सुनिए। देखिए अभी हम ये किसका अध्ययन कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंस में क्या व्यवस्था है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर एक भ्रम है, कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूज लोगों ने एक रियलिटी को खड़ा किया है जिसको हम आज का संसार बोल रहे हैं, ठीक है। अब कन्फ्यूज रियलिटी का कितना स्टडी करें कि हम यहाँ पहुँच जाएं। हमको सही को समझने से, जैसे 2+2 कैसे किया जाता है ये समझने से प्लस करना आएगा, या कैसे कैसे नहीं करना है, केवल इसको अध्ययन करते रहें तो हमको एक दिन समझ में आ जाएगा कि प्लस कैसे करते हैं। गलती का अध्ययन करने से ना, जैसे आपने कुछ गलत कर दिया, आप उसको लेके बैठे रहो, यू विल नॉट रीच टू द राइट प्लेस एवर। आदमी ना, दूसरा मिथ ब्रेक, गलती से नहीं सीखता। देखिए गलतियां करते रहिए। अगर आपको, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, आप इसको कितनी देर तक निहारते रहें कि आपको एक दिन ये समझ में आ जाए क्या करना है। मौत का क्षण आ जाएगा, आपको ये समझ नहीं आएगा इसका करना क्या है। ये एक मिथ है भैया। आदमी जो है समझदार व्यक्ति से सुनता भी है, समझता भी है, उसके प्रति कृतज्ञ भी होता है, और उस जो समझ है उसको आगे भी बढ़ाता है। जबकि हम सब कुछ उल्टी बात ही चल रही है अभी तो। ये हालत है अंकिका, ध्यान से सुनिए। बोलो देवराज। बट मनी इज हैप्पीनेस। हाँ, ये किसने आपको बता दिया? बचपन से आ रहा था आपको मनी इज हैप्पीनेस? मैम अगर बहुत पैसे हो तो मैं अपनी BMW में घूमते रहूँगा। और घूमते रहो फिर क्या करो? मैम तो थोड़ी रहूँगा मैं। अरे मैं मना कहाँ कर रही हूँ। जिनके पास बहुत पैसा है उनको एक बारी बैठ के पूछ लो कि BMW में घूमो, क्या दिक्कत है। अभी जैसे हम लोग इधर आ गए ना दूसरे पड़ाव में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार स्कूल का ज़माना ही कुछ और होता था, है ना, दैट वॉज ट्रू हैप्पीनेस। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये सबको बेटा जो हम बोलते हैं ना, इसको थोड़ा जांचना पड़ेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो ट्रूथ है कि नहीं। अच्छा, और ट्रूथ, हम कौन से ट्रूथ की बात कर रहे हैं? हम ऐसे ट्रूथ की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी के लिए BMW हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, ये सब तो बहुत कुछ है ही, ठीक है देवराज। और डिस्कशन के लिए आपका स्वागत है। 1:15 बजे के बाद बैठ के जितना टाइम आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ ओके ठीक। अंकिका, तो देखो भाई, ये हो गया। संयम का मतलब होता है सही मेंटालिटी, राइट मेंटालिटी का ये है प्रमाण, राइट मेंटालिटी। और राइट मेंटालिटी से पुनः क्या है? शिक्षा देने की टेंडेंसी। ये हमारे अंदर है मानसिकता में, वो आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा। वो दिखाई कैसे पड़ेगा? यहाँ से दिखाई पड़ना शुरू होता है, वो व्यक्ति अपने आप व्यक्त होना शुरू होता है। तो हमारे में कुछ समझ में आया है, ये कैसे प्रमाणित होगा? वॉट विल बी द प्रूफ दैट आई हैव अंडरस्टूड? यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग हियर समवेयर। क्योंकि यही तो आदमी का डिज़ाइन था। मतलब एग्जिस्टेंस में आदमी के जो होने का डिज़ाइन है, उसका एक होने का डिज़ाइन है, वो अपने डिज़ाइन में आ गया। वो वैसा ही एग्जिस्ट कर रहा है जैसा उसका डिज़ाइन था। अगर इसमें कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो गया, यहीं पे ही गड़बड़ होना चालू हो गया ना,
ये पहुंच ही नहीं रहा है, अभी सही शिक्षा ही नहीं आ रही है। ठीक है, आप इसको, और अब ये वाला जो भाग है बेटा, ये तो है ना बहुत आखिरी भाग है पूरा इस दर्शन का, तो मैं 1 2 3 4 इसकी अब बात नहीं करूँगी, इसकी बात करूँगी। ठीक है, अभी इतना ही दिखा पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं समझ रहे हैं हम लोग, कहाँ ध्यान नहीं जा रहा? भूमि मैम, मज़ा आ रही है आपको? चलिए, ठीक है। तो मैंने एक बात तो आपको बता दी, आदमी जो है वो क्या चाहता है? अभय, ये चाहता है। और अभय कैसे आएगा? व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था पैसे से नहीं आएगी। आई नहीं ना, आज आ चुकी होती, इतना पैसा तो आ गया, कहाँ आई व्यवस्था? और इसमें थोड़ा नेगेटिविटी अगर देखेंगे ना, तो वही जिसके पास पैसा बढ़ा उसके घर में संबंध खराब, उन्हीं के यहाँ ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, उन्हीं के यहाँ ज़्यादा समस्याएं दिखाई पड़ रही। बहुत, मतलब आप इसको थोड़ा सर्च करिए। मुझे नेगेटिविटी बोलने का ना आनंद ही नहीं आता है। जीने में अंतर आ जाता है, पास नहीं रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप पैसे से कुल मिला के क्या पूरा होगा? शरीर की आवश्यकता। आदमी शरीर है नहीं, शरीर उसका साधन है। आदमी चैतन्य है, मतलब मानव जो है चैतन्य व्यक्त हो रहा है शरीर के माध्यम से। ठीक है, तो एक बिंदु तो है, हमको चाहिए अभय। ठीक, अब हम लोग थोड़ा अस्तित्व का डिज़ाइन देखते हैं। तो अस्तित्व में एक डिज़ाइन है, क्या डिज़ाइन है बताती हूँ आपको। पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। ये मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, जितना लेना उससे अधिक देने वाला डिज़ाइन। मैं इसको बहुत नहीं रिपीट करूँगी, पर जब आप डिटेल में सुनना चाहेंगे मैं बहुत विस्तार से आपको सुनाऊंगी। ठीक है, ये अस्तित्व में जो ये पेड़ पौधे हैं ना, ये जानते हैं कैसा स्वरूप है इनका? पदार्थ, प्राण और जीव, ये सभी के सभी, मैं एक शब्द लिख रही हूँ, समाधान। ये सारे के सारे क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। विचार करके देखिए, समाधान का मतलब क्या? समाधान का मतलब होता है ऐसा होना कि उससे आगे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। समझ में आया? तो गर्मी है, एसी क्या है? समाधान नहीं है। हर एक जीव को, मानव को प्राणवायु, ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ क्या है? समाधान। इस धरती पर पेड़ के होने से क्या कोई समस्या है? सूरज के ताप को अवशोषित करके फूड बनाता है, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है। और वो जो अपना खाना, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो जीवों से गया, जो मानव से गया, है ना, उसको सोख करके फिर यहाँ से जड़ें जो इसकी पानी ले लेती हैं, फिर C6H12O6, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कुल मिला के जैसे पालक की पत्ती बन गई तो आप पालक पनीर तक पहुँच जाते हैं उससे। समझ रहे हैं? तो ये जो पालक है, ये जो नीम है, ये जो आम है, जितनी भी चीज़ें अस्तित्व में प्राणावस्था की हैं, समाधान स्वरूप है या समस्या स्वरूप है? समाधान स्वरूप है। पदार्थ अवस्था में पदार्थ जितना भी है, मैं हाँ एक बात आप लोगों को चाह रही थी, बता देती हूँ। ये मैंने आपके टीचर्स के साथ शेयर किया था। ये जो धरती है ना, इस धरती में बहुत सारे तत्व हैं। आप लोगों ने बताए थे 120 एलिमेंट्स हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, और जगह जगह अलग अलग तत्व अलग अलग रेशियो प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ। ये जो सूरज की जो ताप है ना, इसको ये पचाता है कोयला, पेट्रोलियम। ठीक, ये हीट क्या करता है? हीट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब धरती में बहुत सारे यहाँ पर मेटल्स होते हैं। हमें पता है धरती क्या है? एक मैग्नेट है, ये तो पता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
द अर्थ इज़ अ मैग्नेट, ये मैग्नेटिज्म है इसमें, तभी तो ये धरती पूरी एक गोले की तरह बंधी हुई, जैसे लड्डू की तरह बंधी हुई है, समझ रहे हैं? तो ये तत्वों के कारण ही इसमें मैग्नेटिज्म है। ठीक, अब तुमने कोयला जो सॉलिड था, ठीक है, इसको धरती के ऊपर यहाँ पर ले आके ऐसे 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 ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको जला जला के क्या किया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड और दुनिया भर की यहाँ गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हवा गर्मी और पकड़ती चली जा रही हैं। तो जो सॉलिड था हीट अब्जॉर्बेंट, उसको आप जब गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किए तो वो क्या हो गया, हीट को और ज़्यादा बढ़ाने वाला, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है ना इसमें। और ये जो इसमें मेटल्स वगैरह हैं, ये तत्व क्या, इनको भी आप धीरे धीरे निकालते जा रहे हो, है ना, या इसमें जो भी पड़े हुए ये क्या कर रहे हैं, अपने में ये गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। तो जब किसी मैग्नेट को गर्म करते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म का लॉस हो जाता है। ये जो धरती आपको एक पिंड दिख रही है ना, इट विल जस्ट क्रैम्बल, समझ में आया, क्रम्बल हो जाएगा एकदम, ये चूर चूर हो जाएगा। सिंपल फिजिक्स है, इस पे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और समझने के लिए फिर आगे, ठीक है। तो ये जो मैं क्या दिखाना चाहती थी यहाँ से, ये जो पदार्थ है ना, या पदार्थ के रूप में ऑल द मटीरियल्स वेयर एवर दे आर, जिस फॉर्मेट में है, अगर सॉलिड हैं तो सॉलिड, लिक्विड हैं तो लिक्विड, गैस हैं तो गैस, जिस फॉर्मेट में धरती में है वो किसी पर्पज़ के साथ है। उस यथार्थ को समझना, उस यथार्थ मतलब पर्पज़ को बताना, ये टीचर का काम है। समझना भी काम है, समझाना भी काम है। अगर वो नहीं हुआ तो समस्या। तो पदार्थ किस स्वरूप में है, समाधान, ठीक है। और अगली अवस्था के लिए क्या है, समृद्धि कारक। अगर आपकी ज़मीन में एलिमेंट्स ना हो, NPK स्पेशली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, खास तत्व हैं 3, और बाकी और 16, और 16 के बाद 120, ठीक है। इस तरीके से ये सारे तत्वों के साथ ही प्राणावस्था धरती पर समृद्ध हुई। प्राणावस्था जो है, प्राणावस्था स्वयं में क्या स्वरूप है इसका, समाधान स्वरूप। कोई भी समस्या हो, मतलब पेट खराब है, आपने देखा होगा कभी, कुत्ता है घास खा लेता है, घास खा के उल्टी कर देता है ना। आदमी का पेट खराब है, थोड़ा नीम का कड़वा काढ़ा, या फिर जितनी सारी भी वनस्पतियाँ उनसे काढ़ा बना के, तुलसी का काढ़ा, पता नहीं क्या क्या आप पीते ही हैं, सही कर लेते हैं अपने आप को। हर वनस्पति समाधान स्वरूप है। और इसका एक और डिज़ाइन है, समाधान के साथ समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है अपने से पिछले जो अवस्था है उसका पोषण करना। मैंने उस दिन बताया था कैसे पत्तियां जो है माइनिंग कर रही हैं और उसके बाद खाद बन रही हैं, और धीरे धीरे धरती और उर्वरक होती चली जा रही है, हो रही है। सेल्फ एनरिचमेंट का कार्यक्रम है, ये है समृद्धि। अभी वस्तुओं को हमने इकट्ठा कर लिया, उसको समृद्धि बोल रहे हैं। वो हमारा कुछ है, आइडिया तो हमको लगता है ऐसा कुछ है, लेकिन वो रियलिटी में क्या, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो समाधान, समृद्धि, ये वस्तु समाधान स्वरूप, पिछली अवस्था के लिए समृद्धि कारक। जीवों का क्या स्वरूप है, समाधान, समृद्धि। आपको मैंने बताया, जीव भी समाधान स्वरूप, प्रॉब्लम तो है नहीं। समृद्धि, उनका एक्सक्रीटा, उनकी चर्पिंग, उनकी मेटिंग, उनका आप सारा क्रियाकलाप देखोगे, पूरा जंगल उनके कारण बैलेंस्ड। तो ये तीनों अवस्थाएं क्या हैं, एक संतुलन में। इस तीनों अवस्थाओं में क्या प्रमाणित करता है, संतुलन को। इन तीनों अवस्थाओं में कोई समस्या नहीं है, अपने आप ये बैलेंस्ड है। और इनका स्वरूप कैसा है, समाधान, समाधान के बाद ऑटोमेटिक समृद्धि। उसका डिज़ाइन ऐसा है, उसका डिज़ाइन जैसा है, वो अपने डिज़ाइन में रहने के कारण पिछली की सभी अवस्थाओं को फ्लरिश करने में हेल्प करता है। ठीक, स्वाभाविक सी बात समझ में आती है, सिंपल लॉजिकल। अगर ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं तो चौथी भी ऐसी होनी चाहिए, है नहीं, है नहीं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम नहीं दे रहे उत्तर, आपके अंदर से निकल के आ रहा है। तो ज्ञान अवस्था में देखो क्या है, ज्ञान अवस्था में 2 चीज़ें हैं, शरीर और चैतन्य।
चैतन्य में जो वस्तु है वो है मानसिकता। और क्या है? जैसा हम समझते हैं वैसा हम अपने शरीर से करते हैं। शरीर जो है ना वो जानते हैं ये समाधान स्वरूप है। शरीर समाधान स्वरूप है। शरीर का डिज़ाइन इतना बढ़िया है, नाक तुम्हारे मुंह के ऊपर, तो जब खाना लेके आते हो तो सुगंध जाती है ठीक से नाक से। नाक अगर तुम्हारी नीचे होती ना, कहीं यहाँ पे कहीं और कहीं यहाँ पे नाक लगी होती तो समस्या हो जाती। नाक बिल्कुल यहाँ, आँख यहाँ, ठीक है। ये ऐसा बढ़िया डिज़ाइन है ना पूरे शरीर का, आंखें पीछे होती तो दिखती कैसे? है ना। तो ये पूरा शरीर का इतना सुंदर डिज़ाइन है हमारा कि हम बढ़िया से जरा सा कुछ चीज़ अलग चली जाती है ना तो आपको खांसी करके तुरंत आपका शरीर बाहर फेंक देता है। तो ये पूरा शरीर जानते हैं समाधान स्वरूप है। लेकिन यहाँ जो है ना बस इस जगह पर क्यों? क्योंकि ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञानावस्था की इकाई मतलब समझने वाली इकाई है, समझ से नियंत्रित है। और अगर इस समझ में गड़बड़ हो गई, मान लो हमने आपको जानवर मान लिया, जानवरों को कॉपी करने लग गए, हम अपने आप को पेड़ से आइडेंटिफाई कर लें, पेड़ों को कॉपी करने लग जाएं, अब यहाँ से समस्या है। क्योंकि आदमी जो है इमेजिनेटिव है, उसके पास दो चीज़ें हैं, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हुई, क्यों गड़बड़ हुई अब वो भी बताते हैं। तो आदमी जो है वो समझने वाली इकाई है, तो उसमें कहाँ पर जो है गड़बड़ ना कहे, अधूरापन कह लीजिए, या इसको आवश्यकता तो बनी रही है ना अंदर से, इसको समझना है हमको। तो उसकी मानसिकता में क्या होना है? परिमार्जन। क्या होना है? मानसिकता में परिमार्जन। और ये जो मानसिकता में परिमार्जन, अभी हमने अपने आप को क्या मान लिया है? हम जीव जानवर हैं। तो जीव जानवर के जो विषय हैं उसमें जीते हैं, वो क्या है इसके बाद अभी बताती हूँ आपको। तो मानसिकता में अब हमने अपने आप को मान लिया कि क्या है? हम जीव जानवर, उन्हीं के जैसा जीना शुरू, खाना पीना इसी के लिए अपनी ज़िंदगी लगाए हुए हैं। इसको कह रहे हैं जीव चेतना। तुम शरीर के साथ कैसे थे? मानव रूप में, लेकिन जी रहे हैं जीवो जैसे। जी रहे हैं जीवो जैसे, तो इसको कह रहे हैं जीव चेतना। और जीना कैसे है हमको? मानव चेतना में। मानव चेतना मतलब मानव होने की मानसिकता क्या है, मानव होना क्या है, सही समझ क्या है। सही समझ होना मतलब मानव चेतना होना, सही समझ मतलब मानव चेतना। ऊट पटांग उल्टी पुल्टी कुछ भी समझ में जीना, जीव चेतना। जीव चेतना में जीते हुए आदमी समस्या के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने डिज़ाइन के अगेंस्ट चल रहे हैं। हम भय से नियंत्रित हैं नहीं, भय से नियंत्रित होने रखने का प्रयास कर रहे हैं, होगा ही नहीं। यू आर गोइंग अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉज। ये डिज़ाइन नहीं है। तो अब मानव चेतना क्या है, इस वस्तु को समझना है। मानव चेतना के लिए मानवीय व्यवस्था में जीना होगा, मानवीय व्यवस्था को समझना होगा। ठीक है अंकिका, ये बात समझ में आई? कठिन तो नहीं लग रही है देवराज? पकड़ में आ रही है? शरीर तक समाधान था। और देखो ये जो मानसिकता, जीवों जैसी मानसिकता हो गई ना, इस मानसिकता का ही भूमि में यहाँ पर जो इफेक्ट होता है ना, जिसको आप डिजीज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं। डिसऑर्डर का मतलब ही है ये ऑर्डर में नहीं है। फियर और ग्रीड में एंग्जाइटी हो जाता है, ये डिसऑर्डर है। और इसके कारण आपने बोला, उन्होंने बताया 90% डिजीज़ उसके कारण से है। आप सोचो अगर 90% लोगों का डिजीज़ समाप्त हो जाए तो कितना तकलीफ समाप्त हो जाएगा, कितने रिसोर्सेज बच जाएंगे, है ना। और बाकी जो सामान्य ज्ञान है स्वस्थ रहने का, अगर वो सर्वसुलभ हो जाए तो शायद हॉस्पिटल्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ विल बी सेलिब्रेशन, नहीं? तो ऐसा जिया जाए। ये करना है कि नहीं करना है? इधर है सॉल्यूशन। इसको समझने में सुख, इसको समझाने में सुख, ऐसा जीने में सुख, मज़ा ही मज़ा है भैया।
इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे उत्सुकता है कि आप आ जाइए तो मैं आपको ये समझा दूँ, क्योंकि आप लोगों के चेहरे जो है ना, आपके चेहरे देख देख के मुझे एनर्जी मिलती रहती है। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, 50 मिनट का लेक्चर होता था, मैं थक जाती थी। यहाँ बोलती हूँ मैं थकती ही नहीं हूँ। ठीक है? मैम एक चीज और पूछूं? यस, बिल्कुल वो पूछिए। जीव चेतना जो आपने लिखा, तो जीव तो समाधान, समृद्धि और संतुलन, जीव अवस्था है वो, उसका तो शरीर ही ऐसा बना था ना। तो जीव चेतना मतलब बस अभी वही तो शुरू कर रहे हैं। एनिमल जैसा बिहेवियर? एनिमल कॉन्शियसनेस। आप एनिमल हो नहीं, एनिमल मान लिया, हाँ। चालू वैसा ही जीना। अभी मैं बताती हूँ, उसी को खोलूंगी इसके तो बाद। मुझे लगता है यहाँ एक फिर दानव चेतना भी होना चाहिए। इसके बाद यही है, जीव चेतना में 2 भाग किए, पशु चेतना, राक्षस चेतना। क्योंकि जीव तो खैर ठीक है, खाएगा पिएगा, अपना जो रेगुलर करते हैं वो आके धरती पे करेगा, पर गलत समझने से ना वो जीव में रहता है ना मानव में है, तो वो दानव हो गया। बस यही है, सब गड़बड़ी कर रहे हैं। पशु चेतना, दानव चेतना और इधर मानव चेतना, यही है और कुछ नहीं है। देखिए कितना बढ़िया सटीक आपने गैस कर लिया। चलिए बिना देरी के, आप में से किसी को ब्रेक लेने की ज़रूरत तो नहीं? जनक सर आपको ठीक है? तो समझ में आया, समाधान समृद्धि। तो हमारा लक्ष्य अभय तो था ही, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए हमको? समाधान, और समाधान के साथ क्या चाहिए? समृद्धि। ये मानव का लक्ष्य है। यहाँ तक समाधान है, यहाँ से कहाँ जाना है? इधर जाना है। अभी हम लोग इधर खड़े हुए हैं, हमारा पूरा एजुकेशन क्या कर रहा है? इधर खड़ा कर देता है। और ये बताऊं आपको, ये इतना आसान काम है कि पूछिए मत। देखिए इसको मैं थोड़ा खोलती हूँ, चेतना को खोलती हूँ, ठीक है? और एक हो कैसे गया ये भी खोलती हूँ। ये बड़ा अद्भुत है भैया। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, इन सारे, इसको ऐसे बनाती हूँ मैं, कैसे बनाए? ये जो बच्चा है, ठीक, ये बच्चा, हर एक बालक न्याय का याचक। ये मैं शब्द लिख रही हूँ। न्याय का याचक मतलब जानते हैं, मैंने जैसे बताया था, माँ से संबंध को पहचानना शुरू करता है, वो सबसे अपने संबंध को जानना शुरू करता है। कोई भी बच्चा हो बैर भाव के साथ पैदा नहीं होता है भाई, होता है। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं, हमने पहले क्या किया उसकी कोई स्मृति नहीं रहती, अस्तित्व तो उसको ज़ीरो कर देता है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट बार बार क्लीन स्लेट हो रही है आपकी। और ये जो न्याय की याचना है, मतलब अखंड समाज की पहचान में तृप्त होती है। देखो मैं भुज से आई हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपना संबंध आपसे पहचान में आ गया है, बस इसी कारण आई हूँ। इसके अलावा मेरे यहाँ आने का कोई कारण नहीं है। इतना पहचान लिया, अब इतना है कि जो जिज्ञासु हैं उनके साथ ही काम करेंगे ना, ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के बैठाएंगे, उतना वो भी नहीं कर सकते। तो मुझे चूंकि आपसे अपना संबंध पहचान में आ गया है, इसके कारण से मैं जा रही हूँ आराम से आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि मुझे संबंध पहचान में आ गया है और ये मुझे तृप्ति देता है। तो ये जो न्याय की याचना थी ना, ये यहाँ पर तृप्त होती है। इसको पूरा सुनते सुनते धीरे धीरे आप इस जगह पर आते हैं जिस चीज़ की कामना आपको बचपन से थी। कोई बैर, एक क्षण का हमको ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमको नहीं चाहिए। ये बच्चे के अंदर आपको डालना पड़ता है। देखा, वो फलाना आगे निकल गया, तुझे भी ऐसा करना है। हाँ, ये हमको करना पड़ता है। करते समय एक बार तो दिल धड़कता है भाई। हमको भी मालूम है हम गलत कर रहे हैं, फिर भी करवा रहे हैं, क्योंकि आज का डिजाइन ही ऐसा है कि नहीं जिए, ऐसे नहीं जिएंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। बस, बहुत सही। आपका नाम मैम? जयश्री। जयश्री मैम। देखिए, याचक जानते हैं याचक का क्या मतलब होता है? मांगने वाला। बच्चा मांग रहा है, बच्चा चाहता है,
न्याय की उसमें अपेक्षा है। और हम सब आज भी इसी जगह खड़े हैं। ये क्या है, अखंड समाज यदि मानसिकता में उसकी आ गया तो यह है उपलब्धि। इसको हम कह रहे हैं सफलता। ठीक है, सबसे संबंध की पहचान हो गई, तब ये बच्चा प्रेम पूर्वक जी पाएगा। तब हम कह रहे हैं वैल्यूज में जी पाएगा। वैल्यूज में जीना प्रवचन नहीं है, रियलिटी में जीना बनेगा। ये हवा हवाई बातें नहीं हैं कि प्रेम करो, लव दाई नेबर, ये सब नहीं कह रहे हैं। उसका प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। तो ये अपेक्षा है और हम सबकी अपेक्षा आज तक पूरी नहीं हुई है। हम सब यहीं अटके हुए हैं। तो ये नहीं करना है, ये तो पता लगता है क्योंकि अंदर जीपीएस है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं लगता है। और इसकी अपेक्षा होती है कि हमारी माँ हमको बताए। इसलिए अगला शब्द कहा सही कार्य व्यवहार का इच्छुक। हर बच्चा जब कुछ भी करता है ना, एक बारी अपनी माँ की तरफ देख लेता है, ठीक किया कि नहीं किया। उसको एक बारी अफर्मेशन चाहिए, ठीक किया कि नहीं किया। माँ बाप यदि अफर्म कर देते हैं ठीक है बेटा, फिर उसी को वो सही मान के करता रहता है। सही कार्य व्यवहार का क्या है, इच्छुक। उसको पता नहीं है, इच्छुक है। बच्चे को आप बोलते बेटा ऐसे नहीं ऐसे, वो तुरंत सुनता आपसे, वो आर्ग्यू नहीं करता। छोटे बच्चे को आप देखिए, हाँ ऐसे, और मेरी टीचर ने ऐसे बताया था, वो मेरी टीचर ऐसे कहती है, मम्मा आप ऐसे नहीं करो। वो जिसको सुपीरियर मानता है उसको इमीडिएटली उसका अनुकरण करने लग जाता है, उसके अनुशासन में आ जाता है। सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। हम सब लोग आज भी यहीं खड़े हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। तो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक से क्या हो जाए, सही कार्य व्यवहार करने वाला हो जाए। ठीक है। और सत्यवक्ता, बच्चे में एक और टेंडेंसी देखी जाती है, जैसा देखता है वैसा बोलता है, जैसा सुनता है वैसा बोलता है। कभी भी वो कुछ अपने आप से ना, उसकी जो कल्पना है ना वो खाली कोरी होती है, जिसको कोरी स्लेट बोलते हैं आप, उसके में कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें आती हैं और उसके बाद वो वही चीज़ को मिमिक करने लग जाता है, वही बोलने लग जाता है, वो भाषा में उसकी चलने लग जाता है। तो सत्यवक्ता है, अपेक्षा है कि सत्य बोध हो जाए और उसकी अपेक्षा है कि जब मैं बोलूं तो सत्य बोलूं। मतलब इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। जिसको हमने आज सुबह से कह रहे हैं ना, अंकिका ने अपनी मम्मी को बताया, इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, ये हमारे अंदर इनेट है। तो सत्य बोध हो जाए और सत्य बोध करा दे, यहाँ पर तृप्ति है। तो सत्य बोध हो जाए और सत्य बोध करा दे, इसको हम कह रहे हैं लेगेसी। समझे हुए को समझाना, ऐसा जी ले तो ऐसा बढ़िया, जिसको कहते हैं ना, ऐसा मृत्यु जो है ना बिल्कुल सहज होती है ना, उसमें मृत्यु का कोई भय नहीं है, एकदम लाइफ है ना किंग स्टाइल। किंग शब्द ही ठीक नहीं है, किंग तो होर्डर है ना, संग्रही को हम लोग राजा बोलते हैं। नहीं, राजा किसको बोलते हैं? सबके घर का लूट के जो अपना घर भर ले उसको राजा बोलते हैं। जमीन को खोद खोद के जो भर ले अपना घर, उसको राजा बोलते हैं। और क्या है राजा? होर्डर को राजा कह रहे हैं हम लोग। सोचिए, हमने राजा राजा बोल के क्या प्रतिष्ठा की हुई है समाज में। तो इस बात को देखते हैं, जो न्याय का याचक है उसका तृप्ति बिंदु क्या है, बच्चा कब तृप्त होगा और कब डिसिप्लिन्ड होगा। जो हमारे सारे टीचर्स की, अभिभावकों की, सब की इच्छा डिसिप्लिन्ड हो जाए। हमें बच्चा जानते हैं कैसा चाहिए, बच्चा नहीं, हम पहले तो खुद अपने आप को कैसे चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कोई आके डंडा लेके हमारे ऊपर खड़ा हो जाए। स्वयं स्फूर्त, इसके लिए शब्द मैं देती हूँ आपको, स्वयं स्फूर्त। और स्वयं स्फूर्तता ही स्वतंत्रता है। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं है ये करने के लिए, मैंने सामने से कहा मुझे ये करना है और मैं करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे कोई चेक करने नहीं आ रहा है कितना बढ़िया है ये। अपने में विश्वास होना कि मुझे ये करना ही है।
कितना बढ़िया ये। तो स्वयं स्फूर्तता, इसकी चाहत है आप में, ठीक है। ऐसा होना चाहते हैं और ऐसा बनाना चाहते हैं तो समझिए अखंड समाज मानसिकता आ जाए, किसी से संबंध में बैर विरोध नहीं। दूसरी बात ये तो छोड़ दीजिए, क्या नहीं, क्या हो देने का भाव। और देने का भाव तब आएगा जब तुम्हारे पास बाल्टी भर गई है और छलकनी शेष है। भरे तो सही, भर ही नहीं रही है भूमि मैम, बाल्टी नहीं भरी हुई है इसलिए नहीं छलक रही है, इसलिए दैट्स वाई वी आर नॉट गिविंग। और हमारे अंदर एक इनर अपने आप ये भी है, एक्चुअली अस्तित्व में ना भ्रम जो है ना उसको वो नहीं फैलता, वो देने का मन नहीं करता है, लेकिन जो ट्रूथ है ना वो परकोलेट करता है, वो आपसे, आप उसको कैद नहीं कर सकते। ज्ञान को, सत्य को आप कैद कर लोगे, इतनी बड़ी सत्ता है आप, समझ रहे हैं। इसलिए तो अखंड समाज मानसिकता, सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है चारों अवस्थाएं, पदार्थ प्राण जीव ज्ञान, चारों अवस्था में क्या हो जाए, संतुलन, चारों अवस्था में संतुलन। तो पदार्थ प्राण जीव में संतुलन तो आपको बताया है ही पूरा डिजाइन। जो चौथी अवस्था है उसमें शिक्षा संस्कार से जो बनाया ना चक्र, शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा ये 5, इसको जोड़ दिया, इसको बोल रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था। अब चारों अवस्थाओं में संतुलन बना रहेगा, और अगर अब चारों अवस्थाओं में संतुलन बना रहेगा और ये जो सत्य है, ये जो समझ है ना, ये शिक्षा संस्कार वो पूरा साइकिल बनाया ना, तो उससे क्या होगा, इसकी परंपरा बनी रहेगी। तो ऐसी जो धरती है इस पर मानव हमेशा हमेशा बना रहेगा, ये धरती हमेशा हमेशा बनी रहेगी, पेड़ पौधे हमेशा हमेशा बने रहेंगे, जीव जानवर बने रहेंगे। तो चारों अवस्थाओं में संतुलन की परंपरा बनी रहेगी, और ऐसी धरती क्या हो, ऐसी धरती स्वर्ग होगी और मानव देवता होंगे। देवता मतलब समृद्धि, समाधान स्वरूप होकर के समृद्धि को प्रमाणित करेंगे, अभय को प्रमाणित करेंगे। धर्म सफल होगा, नित्य शुभ होगा। ये वाला भाग मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। तो धरती स्वर्ग, मानव देवता, ये हमारा डिज़ाइन है भाई। आप चाहो ना चाहो आपको इधर ही आना है। अगर आप इससे विपरीत कहीं जाओगे, आप पाओगे कि हम तृप्त सुखी हैं ही नहीं, पीड़ा बनी हुई है, एजिटेशन बना हुआ है, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है वो तृप्त नहीं हो रहा है। धर्म की बात परंपरा में कहा गया है, धार्यते इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। मध्यस्थ दर्शन इसके विपरीत बात कहता है, जिसको अलग नहीं कर सकते और अलग किया जाए तो उसमें तू पुनः उस तरफ लौटने की चेष्टा स्वयं स्फूर्त है, वो उसका धर्म है। धर्म से तुम कैसे अलग करोगे वस्तु को? तो मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता। एक क्षण भी दुख आया, आप वापस उस तरफ काम करना शुरू करते हो कि कैसे दुख चला जाए या कैसे सुख आ जाए। बाबा जी बोल रहे हैं मानव सुख धर्मी है ना। रिलीजन तो एक स्टोरी है बेटा। धर्म शब्द को फिर से परिभाषित किया, जैसे हमने परंपरा को बताया ना, शिक्षा और व्यवस्था को बोला परंपरा, समाधान को बोला रेजोल्यूशन, ऑल अराउंड रेजोल्यूशन, जिससे पुनः समस्या ना उत्पन्न हो। ऐसे धर्म को बोला इनेट नेचर, जिससे आपको अलग नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ, ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी तो कर्तव्य हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको धर्म क्या चीज़ होती है, ठीक है? ठीक है, तो इस अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। अगर इसमें से इसको छीन लेंगे ना, धर्म जो है, धर्म क्या वस्तु होती है उसको बताती हूँ आपको। उसको हटा देंगे तो वो अवस्था ही नहीं रह जाएगी। उसको डिफाइन किया है, ठीक है? तो जो पदार्थ है
उसका धर्म है अस्तित्व, अस्ति धनत्व, व्यवस्था में होना, व्यवस्था में होना। रुकिए, ध्यान से सुनिए। ये जो पदार्थ है ना, ये हमेशा आपको किस फॉर्मेट में मिलता है? परमाणु, अणु, यौगिक के रूप में। ये रैंडमली स्कैटर्ड नहीं है, इसमें गठन की एक प्रवृत्ति है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं घूमते, वो आकर के एक स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। तो उसकी प्रवृत्ति क्या है? अस्ति मतलब है या होना, त्व मतलब व्यवस्था। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था में होने की, स्ट्रक्चर में आ जाने की एक प्रवृत्ति है। ऑन है ना, अस्तित्व, ये है पदार्थ। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाओगे और टुप करके वापस चला जाएगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते व्यवस्था से। प्राण अवस्था का धर्म है अस्तित्व सहित पुष्टि। पुष्टि मतलब होता है नर्चर करना। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें जो है चयन करती हैं तत्वों का, सूर्य की रोशनी में अपना खाना खुद बनाती हैं। और खाना बना बना के क्या करती हैं? देखो, बीज होता है बेटा इतना बड़ा, और पेड़ होता है न जाने कितना बड़ा। हर पेड़ का अलग अलग साइज, पालक जरा सा, है ना। आप लोग तो पढ़ते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, प्लांट्स, फिर उसके बाद हर्ब्स, श्रब्स, बुशेस, ट्रीज, और वो ट्रीज में भी बहुत बड़े बड़े पेड़ पड़ते हैं। इतना सा बीज होता है और उसमें से कितना बड़ा हो जाता है। और अगर इसमें पुष्टि की क्रिया, मतलब अपने आप को नर्चर करने की क्रिया बंद हो जाए, तो जानते हैं क्या हो जाता है? ये पुनः पदार्थ हो जाता है। डेड ट्री जिसको आप बोलते हैं ना, डेड हो जाता है। डेड मतलब वापस क्या हो जाता है? वो पदार्थ। समझे? ये इसका धर्म है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर क्या है? अब देखो, ये जो भाई इसकी बनावट, इसमें तत्व तो रहेंगे ही, है ना। प्लांट्स में, लीफ में एलिमेंट्स तो रहेंगे, पदार्थ तो रहेगा ही, तो उसमें अस्तित्व भी रहेगा ही, है ना। तो साथ आगे आगे लेके चलेगा। तो अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस इसमें एक और चीज आ जाती है, जीने की आशा, मतलब मूवमेंट फॉर सर्वाइवल। कुल्हाड़ी लेके पेड़ के पास जाओ, वहां पर क्या होगा? आपने मान लो नीम का पेड़ काटा, तो जहां से काटा ना, वहां पे 4 ब्रांचेस और निकल आएंगी, वो फलेगा फूलेगा। ठीक, अब भाई जड़ से ही ना खत्म कर दो, वो भी ना हो, है ना। वो अपना कटकटा के, उससे कुछ नहीं, वो उसमें पुष्टि धर्म अपना चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी लेके जाओ गाय के पास या किसी के पास, भागेगी। मच्छर बैठता, उसको ऐसे करने जाओ, उड़ के भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जीव अवस्था को अलग नहीं कर सकते, है ना। अद्भुत। और मानव में क्या है? अस्तित्व तो है ही, पुष्टि तो है ही, ठीक है, जीने की आशा तो है, लेकिन ये कैसे जीने की आशा? निरंतर सुखपूर्वक, सुरक्षापूर्वक जीने की आशा। या इसको लिख लो, जीने की आशा प्लस निरंतर सुख। हम ये हैं, ये हमारा धर्म है, इससे हमको कोई अलग नहीं कर सकता। हम सदा सदा इसके साथ हैं। वह मैंने कहा ना, काला पीला भूरा, कोई भी रंग का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, भाषा का हो, लिंग का हो, किसी देश का हो, कोई भी व्यक्ति को आप इससे अलग नहीं कर सकते। मध्यस्थ दर्शन इसको कह रहा है, ये धर्म है। जीना तो ऐसे ही है। जीना ऐसा ही है। बात यह है कि ऐसे जीने का डिज़ाइन क्या है? क्या यही जॉब करते हुए, कोयला खोदते हुए, एसी लगाते हुए ऐसे ही जिएंगे ये निरंतर सुख? कैसे मिलेगा ये मुद्दा है। वो तो है, ऐसा चाहते हैं, कामना तो है, कार्यक्रम कहाँ है?
मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कहता है कार्यक्रम यहाँ है। समझ में आया? तो ये है धर्म। धर्म का मतलब होता है डिफॉल्ट डिजाइन। डिफॉल्ट डिजाइन, इसके लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। तुम्हारे अंदर ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, इसके लिए तुमने क्या किया है? तुमने किया है कुछ? कौन सा इंजेक्शन लगवाने से आता है? ये आपके अंदर है। बात ये है, अब एक और शब्द लिखा है बेटा, स्वभाव। इसका मतलब होता है अस्तित्व में तुम्हारे होने का डिजाइन। ये तुम्हारा डिफॉल्ट डिजाइन है। पर तुम यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? ऐसा होगा कैसे? तो उसके लिए जो शब्द है, शब्द को रीडिफाइन करें, स्वभाव कह रहे हैं। तो होना, अस्तित्व में होना, और रहना। रहना मतलब ऐसे रहने का डिज़ाइन हमारा बने तो बात बनेगी। यह अस्तित्व सहज है। जब तक तुमको नहीं पता तब तो कुछ का कुछ चल रहा है, पता होते ही आपको लगेगा यही तो था, यही तो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे होता है? पदार्थ जो है भागीदारी कैसे करता है? स्वभाव का मतलब होता है अपने अस्तित्व या अपने होने के अनुकूल रहना। इसको बोलते हैं समग्र व्यवस्था में भागीदारी। ये जो पूरा जो ऑर्डर है ना, 4 ऑर्डर, इसमें ये अपनी पार्टिसिपेशन कैसे करता है, ये इसको एंश्योर कैसे करता है, इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। हाउ डू वी मैनिफेस्ट दिस? ये इनेट डिज़ाइन है, लेकिन ये डिज़ाइन मैनिफेस्ट कैसे होता है, इसको कह रहे हैं समग्र व्यवस्था में भागीदारी। पार्टिसिपेशन। तो कैसे होता है? संगठन विघटन। संगठन विघटन। तो इस अस्तित्व में ना कोई भी वस्तु आप देखोगे ना, सारे जो अपने एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स ने यौगिक बनाए, कंपाउंड्स बनाए हैं, है ना, अणु परमाणु, इन सबके ऐसे वस्तु बनी जो कि अगली अवस्था के लिए पूरक हुई। इस पूरी धरती पर एक भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, लेकिन आदमी ने एक टेफ्लॉन वाली सर डॉक्यूमेंट्री आपको बताएंगे, मेरे को नाम नहीं याद है। नाम याद है सर? बताइएगा। तो टेफ्लॉन जैसे हमने न जाने कितने ऐसे तत्व बनाए। एक्चुअली सारा केमिस्ट्री का जो रिसर्च है वो यही है, ऑल द केमिकल्स आर हार्मफुल, जस्ट ऑल। किसी का हार्म अभी पता चलता है, किसी का 100 साल बाद समझ में आता है, इतना ही है। तो संगठन विघटन विधि से, संगठन मतलब केमिकल रिएक्शन में साथ में आकर के कोई कंपाउंड बना लिया, विघटन मतलब वो डिकम्पोज या वो उसका क्या बोलते हैं ना, डिसइंटीग्रेट कैसे होता है ना। तो दोनों प्रकार के रिएक्शंस चल रहे हैं। कोई भी चीज़ साथ में आ रही है या साथ से अलग हो रही है, किसी पर्पस के साथ है, बिना पर्पस के नहीं है। और ऐसा हम एक एक पदार्थ को बेटा सोच सकते हैं। एक एक पदार्थ, आपने 120 एलिमेंट्स पढ़े हैं, 120 एलिमेंट्स के कितने वेरिएशंस हो सकते हैं? जब यौगिक देखेंगे बहुत सारे, जरा स्टडी करिए उसको। इतना प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज कि जिसकी कोई बात नहीं। आपको एक प्रिसीजन सुनाती हूँ बैठ के। ये जो पानी है ना, पानी, ठीक, उस दिन आप लोगों को बताया था ना, एक जलने वाला हाइड्रोजन और जलाने वाली वस्तु ऑक्सीजन जब साथ में आए तो क्या बन गया? पानी, जो है बुझाने वाला। ये नेचर है। जनक सर ने एग्जाम्पल दिया था, सोडियम। सोडियम क्या है अपना? एक्सप्लोसिव है। उसको ना केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। इट्स वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं उसको। उसको केरोसिन में आपको दिखाया जाएगा केमिस्ट्री लैब में, शायद आप लोग दिखाते होंगे। तो उसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, जैसे ही उसको बाहर रखो ना, उसमें से अपने आप ही वो होने लग जाता है, स्पार्क जैसा निकलता है। और क्लोराइड, क्लोराइड क्या है? पॉइजनस गैस, क्लोरीन, क्लोरीन, है ना। अब दोनों साथ में आए, क्या बन गया? टेबल सॉल्ट। डालो नमक, मज़े करो। बिना नमक के शरीर चलेगा ही नहीं। ये डिज़ाइन है। सारे के सारे तत्व जो है ना, उन्होंने जब यौगिक बनाया तो अपने आचरण को त्याग करके ऐसी वस्तुएं बना रहे हैं जो कि अगली अवस्था के प्रगटन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक है।
बात पकड़ में आई? ये ऑब्जर्वेशन है अस्तित्व का। जो पानी है ना, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी, उसमें इतने सारे तत्व घुले हुए हैं, उसका एक निश्चित रेशियो है। समुद्र इस धरती में बहुत प्रारंभिक स्थिति में आए होंगे, इतना तो पता है ना। और जिस गर्भ में बच्चा रहता है ना, जो वूम्ब में जो रहता है, उस एमनियोटिक, हाँ क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड का जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है जो एलिमेंट्स का, इट इज़ आइडेंटिकल टू सी वाटर। हाउ मच? 99.99%। गूगल इट। 99.99%। वो पानी तुम्हारे शरीर, भाई अपन भरते थोड़ी हैं कि सी वाटर पी लिया, आपके शरीर में सेम रेशियो कैसे आ जाता है जिसके अंदर वो बच्चा घूम रहा है। गूगल इट। यह अस्तित्व बहुत खूबसूरत है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रकाश में देखिए, दिखेगा, ये धरती स्वर्ग दिखेगी आपको। तो सारा संगठन विघटन पूर्व के भागीदारी है। खा रहे हो पालक, बन रहा है समुद्र के भीतर वाला पानी। सोचो तो ज़रा, तुम्हारे क्या क्या अपन खाते हैं और क्या क्या खा करके ना, जो कुछ भी खा रहे हैं उस सबसे कुल मिला करके अपन कुछ भी खा रहे हैं ना, सेब खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, सब अपने आप में अलग अलग वस्तुएं, और खा पी करके अपन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो जरा सी छोटी सी थी और एकदम इतने 5.5 फुट के कैसे खड़े हो गए, पता ही नहीं चल रहा। क्या डिज़ाइन है भाई, उसका स्टडी ज़रा करिए, ठीक है। अब आगे इससे बाद में। तो संगठन विघटन, ये विधि से पूरे अस्तित्व में इसकी भागीदारी है, ठीक है। पूरे एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस में इसकी भागीदारी है। प्राण अवस्था कैसे भागीदारी करती है? सारक मारक, पोषण करती है या किसी चीज़ को मार देती है? मारती है तो भी पोषण करती है। क्या मतलब? जैसे तुमको पेट में कीड़े हो गए, तुमने पिया नीम का काढ़ा, नीम का काढ़ा पेट में गया, कीड़े मर गए, डीवर्मिंग हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया? पोषण हो गया। ऐसे ही क्रम हर एक वस्तु में है। अब इसका स्टडी करिएगा, ये आपकी बायो टीचर्स बताएंगी, ठीक है। अभी हमारा काम नहीं है, ठीक है। मैं आपकी भूमि मैम हमसे अच्छा ही जानती होंगी ये सब, ठीक। केवल इस दृष्टि से देखने भर की ज़रूरत है, दिखाने भर की ज़रूरत है। जीव अवस्था किस विधि से? क्रूर अक्रूर, या इसको हम कहें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, है ना। मतलब कुछ शाक भाजी खाने वाले होते हैं और कुछ जीव जानवरों को खाते हैं। किस अर्थ में खाते हैं? टू ब्रिंग द बैलेंस। दीज एनिमल्स आर नॉट डूइंग क्रूएलिटी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, उसको कोई ग्रज नहीं है वहाँ पर, उसके बॉडी में ऐसा डिज़ाइन है दैट इट हैज़ टू, उसको हंगर है। वो जैसे बिल्ली को ना आप वो, या शेर को आप ऐसे वेजिटेरियन नहीं बना पाओगे, है ना। उसको इंस्टिंक्ट है, आप मान लो बना भी दो, जैसे ही जंगल में छोड़ोगे ना, उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? वो उसके बॉडी में इनग्रेव्ड है। तो इस तरीके से ये बैलेंस को लेकर के आते हैं, ये नियंत्रण को लेके आती है, ये नियम को लेके आता है, ठीक है। ये सब बाद में खुलेगा, अभी नहीं। और ज्ञानावस्था कैसे भागीदारी करती है, ये मुद्दे की बात है। इसका स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता, फिर दया, फिर कृपा, करुणा। ओहो हो, दिस इज आवर डिजाइन, दिस इज आवर पार्टिसिपेशन। धीरता मतलब क्या? मैं बताती हूँ, यहाँ पे रीडिफाइन है ना सारे टर्म। आप तो ठीक ही कह रहे हैं, अभी तक जितना समझे। यहाँ पे सारे शब्दों को ना रीडिफाइन किया गया है। धर्म का पर्टिकुलर, जैसे केमिस्ट्री होती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो पढ़ते हैं H फॉर हैट, H फॉर हैन, फिर केमिस्ट्री में आते तो कहते हैं H फॉर हाइड्रोजन। ऐसे तो होता है। यहाँ पे C फॉर कार्बन हो जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है ना, धर्म का एक मतलब है, स्वभाव का एक मतलब है। ये धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा का भी एक मतलब है।
इसको बताती हूँ आपको। कितना टाइम हो गया? आई डोंट वांट देम टू गेट लेट टुडे। टाइम एक बार ही बताइए। ठीक है, फिर एक ब्रेक देते हैं अभी, है ना। तो देखिए, धीरता का मतलब होता है मानव जीना कैसे चाहता है। यहाँ था, लिखा था ना मैंने, अखंड समाज मानसिकता। तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, चारों अवस्था में संतुलन के साथ मानव ऐसे जीना चाहता है। ठीक है, तो अगर इस अखंड समाज मानसिकता के लिए, है ना, न्याय मतलब अखंड समाज मानसिकता, इसके लिए अपने मन को तुमने लगाया। अपने मन को लगाना, मन को लगाने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, समझने के लिए सुनना। तो आप अपने आप इस जगह आ जाते हैं। राइट नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस। यही है धीरता। इसी को मैं कह रही थी, अटेंशन स्पैन कम नहीं है आदमी का, ये डिज़ाइन है तुम्हारा। किस लिए? इस अर्थ में जब होगा ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक रेगुलेशन चालू हो जाता है। अपने में कुछ क्लोज नहीं है, इनपुट ही नहीं आ रहा है ठीक। मशीन ठीक है, इनपुट खराब है भाई। ठीक है, तो न्याय या अखंड समाज मानसिकता के लिए अपने मन को लगाना, यह है धीरता। मुझे समझ में आ जाए इसके लिए न्याय मतलब अखंड समाज मानसिकता के लिए अपने मन को लगाया, है ना। दूसरे को न्याय उपलब्ध करा दे, मतलब दूसरे में अखंड समाज की मानसिकता बन जाए, इसके लिए, है ना। न्याय को मुझे कितना, मैं कैसे लिखूं? न्याय को उपलब्ध कराने के लिए अपने तन और मन को लगाना। अपना शरीर भी लगा दिया, अपना मन भी लगा दिया, मतलब अपनी जो अंदर ही ऊर्जा है उसको लगा दिया। ये तन मन लगाया, इसको बोल रहे हैं वीरता। वो ऐसे जाके किसी का गला कतल किया, उसको क्रूरता कहते हैं। अभी हम लोग क्रूरता को वीरता कहते हैं। हमको ये पता ही नहीं चला कि आदमी समझ से नियंत्रित है। ठीक है, तो तन और मन को लगाना, दूसरे को भी ये समझ में आ जाए। फिर तीसरा लेवल है, हाँ जी, जैसे आप समझा रहे हो वीरता का काम है। आपने इससे पहले इस दर्शन को नहीं सुना है ना, कि सुना है? थोड़ा बहुत हम साथ सुना है, ठीक है, धन्यवाद, बढ़िया। उसके बाद देखिए, तो न्याय को और किसी और को न्याय उपलब्ध कराने के लिए अपने तन को भी लगाना, अपने मन को भी लगाना, और अपने पास हो जो साधन है उसको भी लगा देना, अपने साधन को भी लगा देना। ये है उदारता। यानी पैसा, सब कुछ आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ऑल, शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है, मन भी इंस्ट्रूमेंट है, और धन के रूप में धन क्या है? पैसा थोड़ी, कागज थोड़ी लगाते हो, वस्तु लगाते हो ना, तो वस्तु भी उठा के लगा दिया। तुमको समझ में आ जाए, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना ये सब हमारे साधन हैं, है ना। सब चीज़ें किस लिए लगा दी? इसके लिए लगा दी। इसको कहा उदारता। और ऐसा कर कर के आदमी तृप्त होता है। मैं देती हूँ तो तुम लेके भी तृप्त होते हो। देखो, अभी तक हम जिसको मानते रहे उसमें देने वाला अपने अहंकार से भर जाता है और लेने वाले को छोटा महसूस होता है। यहाँ देने वाला भी बड़ा, लेने वाला और बड़ा। ठीक है, वो भरता है ना। तो देखो, ये है धीरता, वीरता, उदारता। ऐसा करके आदमी तृप्त होने का डिज़ाइन है। दया, कृपा, करुणा, ये क्या है? दया, कृपा, करुणा है जिसके पास पात्रता हो, वस्तु ना हो, है ना। पात्रता हो, वस्तु ना हो। पात्रता मतलब मानवीयता की मानसिकता हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़बरदस्त। पात्रता हो और वस्तु ना हो, मतलब ये जो न्याय मानसिकता है उसके पास, लेकिन उसके पास साधन रूपी कुछ वस्तुएं नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर दें? उपलब्ध करा दें साधन। तो हमने क्या कर दिया? मानवीयता का पोषण कर दिया, मानवीयता का संरक्षण, क्योंकि उसके माध्यम से क्या होगा? मानवीयता आगे बढ़ेगी। लीजिए,
ये है दया। क्या बड़ा काम किया। पात्रता है, वस्तु नहीं है, साधन नहीं है, उपलब्ध करा दिए। ठीक है, वस्तु है, पात्रता नहीं है। वस्तुएं हैं, लोगों के पास बहुत सारे साधन होते हैं, मानसिकता ही नहीं होती। तो कोई व्यक्ति उसके पास जा करके उसको समझा दिया, तो हमने उसको क्या बना दिया, पात्र बना दिया। क्या बढ़िया काम कर दिया। तो अब इसके पास जो साधन थे और अब मानसिकता भी आ गई, तो साधनों का सदुपयोग करने लग जाएगा। ये है कृपा, ये है कृपा। किसी की कृपा आपके ऊपर बरस गई, आपकी मानसिकता को सही कर दिया उसने, यथार्थ समझ को डाल दिया, ये है कृपा। और ना वस्तु है ना पात्रता है, दोनों उपलब्ध करा दिए, ये है करुणा। साधन भी उपलब्ध करा दें, मानसिकता भी उपलब्ध करा दें, ये है करुणा। ये दर्शन इसको ऐसे डिफाइन करता है। और इस तरीके से जीने में, ऐसा जीने वालों को बोलते हैं मानव चेतना में जीना। ये है मानव चेतना। मानव चेतना। और आगे नाम दिया दया कृपा। जिसके पास पात्रता हो, वस्तु ना हो तो वस्तु उपलब्ध करा दें। लिख देती हूँ, वस्तु ना हो तो वस्तु उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। यहां पर क्या है, वस्तु है, वस्तु है, पात्रता नहीं है। पात्रता मतलब मानसिकता, पात्रता नहीं है तो क्या उपलब्ध करा दो, पात्रता उपलब्ध करा दो। ना वस्तु है ना पात्रता है, दोनों उपलब्ध करा दो। इस दया कृपा, जो व्यक्ति इसके साथ जीते हैं, इसको बोलते हैं देव मानव। यह है देव मानव चेतना, यही देवता है। और ये जो है, इसे कह रहे हैं दिव्य मानव चेतना। दिव्य मानव, ऐसा जीने वाले के साथ हर व्यक्ति तृप्त है। तृप्त, ये है आपके होने रहने का डिज़ाइन। अब ये निरंतर सुखपूर्वक जीना होगा धरती पर कि नहीं होगा, अगर ऐसा हर मानव हो जाए। और करना क्या है, रियलिटी को समझना समझाना इतना छोटा सा काम है। बहुत कम है ऐसे मानव। हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई। ये धरती पहले आग का गोला थी, किसने सोचा था यहाँ तक चली आएगी 4.5 मिलियन ईयर्स में। हो जाएंगे ना, होने का ही तो डिज़ाइन है। 3 दिन पहले तक मैं अकेली थी ये बात जानने वाली, आज मेरे साथ 7-8 और लोग हो गए। मेरा मल्टीप्लिकेशन ठीक ही चल रहा है। अभी थोड़े दिन बाद कहीं और जाऊंगी, इससे और कोई कार्यक्रम निकलेगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि इसको हमको और पूरा समझा दो, हम इसको समझना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे जीना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे आपके जैसा होना चाहते हैं। तो हम उसको ये सब सिखा देंगे, हम तो यही करना चाहते हैं। और सिखाने के बाद हम तृप्त, वो तृप्त, आगे वो 50 लोग और खड़े करेगा। बढ़िया, हमारी तरफ से पूरा यस मैम। बताइए, माइक दीजिए उनको। हाँ जी, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके तो ऐसा पास बेटा माइक। हाँ, साधन है, सॉरी, उसको ऑन करना पड़ेगा। उसमें एक बटन है। इसके बाद विल टेक अ ब्रेक, है ना, 5 मिनट का। अभी किसी व्यक्ति के पास साधन है लेकिन उसकी पात्रता नहीं है। बना देंगे। पात्रता मतलब रियलिटी की समझ नहीं। हमने समझा दिया, वो व्यक्ति नहीं समझा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। उसमें पात्र ना 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 ना, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, होल्ड 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 होल्ड। यहाँ पर 2 ही लोगों को समझा सकते हैं आप, जिज्ञासु और कृतज्ञ। इसके अलावा किसी को नहीं समझाना है। वो डिज़ाइन नहीं है अस्तित्व में, धक्का मार डिज़ाइन नहीं है। नहीं तो वो किसका नुकसान बोलेंगे, मतलब किसका हार हुई इसमें, उस व्यक्ति की या हमारी? किसी की हार नहीं है। हर व्यक्ति जिज्ञासु, हर व्यक्ति कृतज्ञ है ही किसी ना किसी के प्रति। आपके प्रति नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपकी कल्पना जानते हैं कहाँ दौड़ रही है। आपकी कल्पना अपने शरीर मूलक संबंधों के ऊपर अभी दौड़ रही है। हमारे माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चे और हमारे कोई जिन जानने वाले,
उनके साथ क्या है, पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है जिसके कारण आपके प्रति उनमें विश्वास नहीं है। ठीक, अब संबंध वहाँ टूटा हुआ है, टूटे हुए संबंध में समझाना नहीं होता, समझाना संबंध के साथ है। जिस कोई तो व्यक्ति होगा जो आपसे सुनता होगा, नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे बहुत होंगे, उनको समझाना है जैसे स्टूडेंट्स की बात हम बस। सोचते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो सुनने के लिए तैयार होते हैं, बस। समझने के लिए तैयार होते हैं, कुछ नहीं होते। तो मतलब वहाँ एज अ टीचर वो बच्चा भी किसी ना किसी से सुनता ही है, किसी ना किसी से, सब बच्चे सुन ही रहे हैं। आपसे नहीं सीखेगा, मोबाइल से सीख लेगा, दोस्त से सीख लेगा। अपने को क्या करना है, वातावरण खड़ा करना है। 50 जगह से उसमें यही बम्बार्डिंग चालू हो जाए, होने लग जाएगा। किसी और से सीखेगा तो सब, क्योंकि जानना तो सबको ही है। बहुत आसान है। देखिए, हम यहाँ पर आराम से आए, हमने ओरिएंटेशन लिया, हमने तो नहीं सोचा था नीपा मैम को समझाना है, ठीक, और हमने काफ़ी हाई लेवल कंटेंट को डिलीवर किया आपके साथ। वो हमारे ये आप दोनों ने किया है तो आपको पता है कि कितना हाई लेवल मैंने कंटेंट डिलीवर किया। इट्स अल्टीमेट। आपको भी पता चलेगा, आप अभी सुनोगे तो आपको आइडिया लगेगा कितना डेप्थ में मैंने छोटे से समय में इसको डिलीवर करने का प्रयास किया। इट वॉज ऑल्सो माई एक्सपेरिमेंट। लेट मी सी कि आप लोगों को पहुँचता है कि नहीं। पहुँच गया, आप लोग यहाँ बैठ गए, मन लगा के सुने ही जा रहे हो। कैसे हो रहा है ऐसा? हमको विश्वास था ही। क्योंकि ये सब हमारे अंदर पहले से ही थोड़ा थोड़ा है। धन्यवाद, दैट्स इट। हम है ना अविश्वास से शुरू करते हैं कि ये नहीं समझेगा। हम तो बड़े मज़े से वहाँ खड़े होकर बोल रहे थे आप लोगों के सामने, हम तो यही मान के सब बोल रहे हैं कि आप समझोगे। मैंने हर एक व्यक्ति को ज्ञानावस्था की इकाई मान ही लिया है, मान नहीं जान ही लिया है। इतना भी जानते हैं कि हम यहाँ इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं और इसको कैसे समझते हैं, इतना भी जानते हैं जीने के लिए। बहुत आसान है ये, और टीचर्स के लिए तो बड़ा आसान है। 40 मिनट आपको तो सुनना ही है लोगों को। अच्छा, बच्चों में मैं आई फील टीचर्स के प्रति स्वीकृति होती है। बहुत सारे टीचर्स के प्रति आप देखोगे, अलग अलग टीचर्स के प्रति अलग अलग बच्चों में स्वीकृति होती है। कोई बात किसी को, कोई बात किसी को, जो जहाँ से सुने वहाँ से सुने। अब मैं पूरी दुनिया का थोड़ी ये करने जाऊँगी। अभी दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं। कमल मंगल जी ने हमसे कहा कि दीदी आप आइएगा 1.5-2 महीने पहले, तो मैंने कहा हम आएंगे ज़रूर। मेरे को जैसी अनुकूलता बनी मैंने उनको कॉल किया। अब मैं किसी ऐसे को नहीं कॉल करूँगी जो हमको जानता ही नहीं है और जिसमें जो हमारे प्रति हमारे में मतलब देख ही नहीं पा रहा है कि उनमें हमारे में क्या खूबी है। मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना। स्ट्रगल लाइफ का डिज़ाइन नहीं है। हमने कहा ठीक है भैया, मैं सुबह 6:45 बजे कॉल किया कि मेरा ये शेड्यूल फ्री हुआ है, बताइए। बोले आप आ ही जाओ। मैंने कहा 8 की ट्रेन की अनुकूल टिकट नहीं, बोले 7 को आ जाओ। हम 7 को पहुंच गए, 7 की रात में, ठीक, और काम चालू। अभी सारा साधन सब कुछ बढ़िया उपलब्ध है, कोई दिक्कत तो है नहीं। मेरा मन तो है ही, उनको यहाँ पर सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ऊपर विश्वास, हम उनके ऊपर विश्वास, संबंध पूर्वक काम हो गया। आपसे मित्रता हो गई, आप तक वस्तु पहुँच गई। बढ़िया, ठीक, ये सत्र यहाँ पर रोक सकते हैं।